this is Shruti Kanu and welcome back to my channel Shrutiverse. I hope you all are doing good, and as you all know, I have cleared JAM BT with AIR 6 and GATE Excel with AIR 107 and also cleared many exams like GAT B, TIFR. So today I'm here to guide you all in the last 2 months of preparation for IIT JAM Biotechnology. What should we do and what should we not? So let's discuss all that in this video. So, the most important advice at this point of time would be to solve the PYQs. At least solve 15 to 20 years of PYQs in this 2 months of tenure. For the people who have already finished their syllabus, they should focus on question solving and revision. So the ratio should be 80% question solving में लगाना है and 20% revision में लगाना है. In that question solving also, there should be two categories. 3 hours की क्वेश्चन सॉल्विंग डेली होनी चाहिए एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एटलीस्ट 2 to 3 hours एनालिसिस में तो चले ही जाते हैं इफ़ यू हैव मेड मच मिस्टेक्स विच आई बिलीव यू ऑल आर नॉट मेकिंग. एंड ऑल्सो जिन क्वेश्चंस में आपकी गलतियाँ हो रही है उनको प्लीज़ एक नोटबुक में कॉपी करें अलॉन्ग विद द क्वेश्चन एंड द आंसर एंड रिवाइज दैट एज वेल. सो दिस शुड बी द फ्लो इन द लास्ट 2 months फॉर द पीपल हु हैव ऑलरेडी completed their syllabus. Now for the people who have not completed their syllabus, like जिनका 60% completed है 80% completed है, I would say the people who have completed 80 to 90% of the syllabus should not run for completing their syllabus because the time demands to strengthen your topics which you already have covered. So I would suggest you guys who have already completed 80 to 90% of the syllabus to focus much on revision and question solving. Now for the people who have completed 60 to 70% of the syllabus, they can focus on completing the syllabus, not 100%, which is not possible also. So they should focus much on the important topics and finish that, not only from biology but also from physics, chemistry and maths, because judging from the last year's pattern, the biology questions were totally unpredictable. The physics, chemistry, maths were around more present in more percentage than they were in the previous years. So please focus on physics, chemistry, maths along with biology, and please focus on numerical questions as well. So for the people who have not completed their syllabus, I would suggest you to just at least complete 80% of the syllabus, then do your revision and question solving side by side. You all have to work very hard. If you are giving 6 hours a day, you have to increase that hours and give 8 hours. एंड ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों को 6 hours में ही सारी चीज़ें कंप्लीट हो जा रहे हैं. सम पीपल में रिक्वायर 8 hours, सम पीपल में रिक्वायर 10 hours. सो इट्स अप टू यू कि आपको कितना टाइम लग रहा है. गिव दैट टाइम. इफ़ यू आर गिविंग 6 hours अर्लियर, गिव 8 hours नाउ. इफ़ यू आर गिविंग 10 hours अर्लियर, गिव 12 hours. स्लीप लेस. तो मैंने कम सोने से कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी. एंड अगर आप एक 2027 एस्पिरेंट है और आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि PW के 2025 स्टूडेंट्स ने स्कोर किए हैं बहुत ही बेहतरीन रैंक्स. AIR 1 इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स एंड AIR 2 इन बायोटेक्नोलॉजी. सो PW लेकर आया है अर्ली बर्ड सेल, जिसमें आपको IIT JAM बैचेस विच इज साकार 2027 विच इज अवेलेबल फॉर केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी एट जस्ट ₹4,999. The features of the batch are interactive live and recorded classes, DPPs in quiz format for exam like practical, 2000 plus practical questions and 15 fortnightly tests, experienced faculties and structured study plan. Sakar Pro 2027 available for chemistry, physics, mathematics and biotechnology at just ₹6,999. The features of the batch are live classes plus notes, access to all upcoming batches, hard copy of IIT JAM PYQ books, Khazana package, best video lectures included. So start your IIT JAM 2027 preparation with PW batches and use my code STUT300 to grab an additional discount of ₹200. Now this is for everyone who have completed their syllabus or who have not completed their syllabus. For people who have completed their syllabus, they should increase the amount of mocks they are given in a week or a month. And the people who have not completed their syllabus, they should at least try to give 2 mocks a week. That would be very much helpful. And उस mock में आपको time manage भी करना है.
बाई सिलेक्टिंग योर ओन स्ट्रैटेजी कि आपको MCQ पहले करना है, फिर NAT करना है, फिर MSQ करना है. इट ऑल डिपेंड्स फॉर यू ऑल, बट वॉट आई यूज टू डू इज MCQ, देन NAT, देन MSQ. सो यू कैन डिसाइड योर ओन स्ट्रैटेजी, जो आपको मॉक सॉल्व करने से ही पता चलेगा. और नेक्स्ट ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि IIT जैम के एग्ज़ाम के टाइम पे जो कैलकुलेटर शो होता है स्क्रीन में, दैट इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट दैट द कैलकुलेटर्स वी यूज़. सो प्लीज़ गेट इन हैंड विद दैट, बिकॉज एग्ज़ाम टाइम में अगर आपको वो कैलकुलेटर यूज़ करना नहीं आ रहा है, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ log 2 और log 5, इफ़ यू डोंट रिमेंबर दैट, तो बहुत टाइम वेस्ट हो सकता है. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ गिव मॉक टेस्ट, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. बट येस, अगर आपको मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं तो डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि कम मार्क्स इज़ वेरी नॉर्मल. इट ऑल डिपेंड्स ऑन दी लेवल ऑफ द पेपर. अगर पेपर का लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई है तो आपके मार्क्स कम आएंगे. जो हर साल की रहती है, जैसे कि 2024 का जो पेपर था, दैट वाज वेरी इजी, इसलिए जो हाईएस्ट मार्क्स थे वो 80s के अराउंड थे. एंड जो 2025 का पेपर था, दैट वाज अ लाइक मॉडरेट टू हाई लेवल पेपर, सो उसका हाईएस्ट मार्क्स वाज ऑन 60s. सो यू कैन से दैट कि मार्क्स से मतलब नहीं है, रैंक से मतलब है. एंड मार्क्स कितने आएंगे दैट डिपेंड्स ऑन कि पेपर का लेवल क्या है, एंड पेपर का लेवल से डिसाइड होगा कि आपकी क्या रैंक आएगी. अगर आपने मेहनत करी है तो कम मार्क्स में भी अच्छी रैंक आ सकती है. अगर पेपर टफ है तो, पेपर इजी है तो ज़्यादा मार्क्स में अच्छी रैंक आएगी. बस यही डिफरेंस होता है. सो जिन लोगों का भी ये क्वेश्चन है कि मार्क्स कितने आने चाहिए, तो मार्क्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पेपर डिफ़िकल्टी लेवल, एंड देन उसके हिसाब से रैंक सेट होती है. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड. नेक्स्ट टिप है कि जब भी हमको ये क्वेश्चंस दिखते हैं नाट में कि राउंड ऑफ टू 3 डेसिमल प्लेसेस टू 2 डेसिमल प्लेसेस, इट कुड बी कंफ्यूजिंग इफ यू डू इट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द एग्जाम. सो डू प्रैक्टिस दैट एंड डू कीप इन माइंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राउंडिंग ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल प्लेसेस और 1 डेसिमल प्लेसेस. अगर आपने ज़्यादा टाइप कर दिया या कम टाइप कर दिया या तो कुछ गलती कर दी, तो उसके लिए भी मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं. सो बी केयरफुल विद दैट. एंड क्योंकि आपके पास IIT जैम में कैलकुलेटर अवेलेबल है, तो सो ट्राई टू रिमेंबर द कांस्टेंट का जो वैल्यूज़ है, जैसे कि एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23. इतना याद तो रखना पड़ेगा आपको, ताकि आप अच्छे से कैलकुलेशन करें, आपका आंसर एटलीस्ट आसपास आए, जिससे आपको मार्क्स मिल जाए. क्योंकि आंसर जो है नाट का वो एक रेंज में मार्क होता है. अगर आपने कोई भी पेपर का आंसर की देखा होगा, तो उसमें जो नैट के क्वेश्चंस रहते हैं उसमें एक रेंज दिया रहता है. अगर आपका आंसर उस रेंज में है तो आपको मार्क्स मिल जाएगा. सो नो नीड टू बी वेरी मच प्रिसाइज, बट यू कैन बी अप्रॉक्सीमेटली एक्यूरेट. So this is it for the video. If you have any other questions, please do write in the comments. So thank you so much for watching. Do like, share, subscribe. Bye bye.